Hello everyone, welcome to lecture number 26. So we are into the end phase of the topic puzzles. Let us begin with question number 1. In the question number 1, it has says Lakshmi, her brother, Lakshmi, we shall denote it with L, Lakshmi's brother, LB, Lakshmi's daughter, LD, and Lakshmi's son. Clear? L is for Lakshmi. This is Lakshmi's brother. This is Lakshmi's daughter. And this is Lakshmi's son. Are badminton players. A game of doubles is about to begin. The question is, who is the best player? Out of the information given to you, we need to identify who is the best player among them. Now let us read the question number 1. Statement number 1. Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. So can we draw this and giving this position as to Lakshmi's brother, and says Lakshmi's daughter is directly across the net from her daughter? So that means we can say this will be LD. ये statement समझ में आ गया? Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. So if Lakshmi's daughter is present here, then Lakshmi's brother will be present here, as it is mentioned in bit 1 that Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. Clear? Now this we have done. Coming to bit number 2, it says her son is diagonally across the net. Her son, that means Lakshmi's son, is diagonally across the net from the worst player's sibling. Are you getting any whip of it? Let us see it again. Her son is diagonally. So it can be either here or it can be here. Who? Lakshmi's son is across the net from the worst player's sibling. Now, if we assume, who are the siblings present here? Brother, daughter. Sorry, Lakshmi and Lakshmi's brother. Lakshmi and Lakshmi's brother are the two siblings present here, and Lakshmi's son and Lakshmi's daughter. So son is diagonally across the net. So that means we are eliminating Lakshmi's daughter as the pair sibling. Son is diagonally across the net from the worst player sibling. If Lakshmi is the worst player sibling will be Lakshmi's brother. Lakshmi's brother's diagonal element will be Lakshmi's son. Clear? Lakshmi's son is diagonally across the net from the worst player sibling. If Lakshmi is the worst player, Lakshmi's worst player's sibling is Lakshmi's brother. Lakshmi's brother's diagonal element will be Lakshmi's son. Now, the best player and the worst player on the same side of the net. Worst player is Lakshmi. Best player would be Lakshmi's brother. So, who is the best player? Her brother. Clear? Got it? So we have done bit number 1, question number 1. Let us proceed to question number 2. These are easy questions, but requires understanding of the question as well as thoda patience. Clear? Coming to question number 2. Now question number 2 says, to ensure that any two consecutive floors have different colors. Any two consecutive floors have different colors. Which of the statement will help us to reach to the solution? Let us read. A 5-storied building with floors from 1, 2, 3, 4, 5 is painted using 4 colors. Important statement. 4 different colors. And only one color is used to paint a floor. Clear? Now read the first statement. Statement number 1, statement number 2, and statement number 3. Statement number 1 says the middle and the third floor, middle 3 floors are painted in different colors. Color number 1, color number 2, color number 3. We are assuming. Now another color remains, 4th color. It can be present here or here. Clear? Now, read the second statement. The second and the 4th colors are painted in different colors. Color number 1, color number 2. These 3 remains. The first and the 4th colors, 5th floors are painted red.
red and red. Only statement 2 is sufficient. Read statement 2. Can you predict that two consecutive floors have different colors? Can you predict that? आपके पास दो कलर्स चले गए, बाकी दो कलर्स देना है. आप कहीं पे भी दे सकते हो. अगर मैं यहाँ पे C1 दे दिया तो टू कंसेक्यूटिव फ्लोर्स मे नॉट हैव डिफरेंट कलर्स. क्लियर? क्योंकि आपके पास अभी दो कलर्स देना है ना. आप स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए कोशिश करो. यहाँ पे आपको C3 दे दिए और C4 दे दिए. चलो यहाँ पे डिफरेंट कलर हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कलर हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कलर हो गया, बट यहाँ पे एक कलर जो आएगा वो C1 के साथ मैच कर जाएगा. या अभी आप यहाँ पे C1 अगर दे देते हो तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट वोंट एबल टू रीच टू अ सोल्यूशन दैट two consecutive floors have different colors, so we are eliminating this. Only statement 3 is sufficient. रेड हो गया, रेड हो गया, बाकी तीन कलर्स. सपोज वी आर टेकिंग रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. रेड चला गया, हो सकता है यहाँ पे भी रेड आ जाए, बट यहाँ पे एक चीज गिवन है, दैट इज 4 डिफरेंट कलर्स हैव टू बी यूज्ड टू पेंट दोस 5 फ्लोर्स. तो आपके यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पे येलो आ जाएगा. क्या दोनों फ्लोर्स कंसेक्यूटिव फ्लोर्स डिफरेंट है. सो कैन वी से स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट? It's sufficient to give you the solution to this question that two consecutive floors have different colors. Clear? Got it? Okay. Now let us proceed to the next problem. 7 books P, Q, R, S, T, U, V are placed side by side. P, Q, R, S, T, U and V placed side by side. R, Q, T have blue covers, color. Now if we give the color, we can give R as blue, Q as blue and T as blue, and the others are red color, red, 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 red. Got it? Only S and U are new books and the rest are old. Type. और एक है नेचर. एक टाइप में क्या होगा कि एस एंड यू आर न्यू बुक्स, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, द रेस्ट आर ओल्ड, 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 ओल्ड. क्लियर? पी, आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स, लॉ, 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 and the rest are gadgeters, G, 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 G. Now the question here is old gadgeter with blue cover. So आपको क्या चाहिए? old gadgeter with blue colors, OGB. कहाँ पे OGB है? यहाँ पे है OGB. और कहीं पे है? G देखो, OGB, OGB यहाँ पे है. So your answer would be Q and T. So C is your correct option. Clear? Got it? Easy question. Let us proceed to the next problem. Very important question. This type of questions are repeated in the same paper around 3 times. Okay, similar approach. Understand this question. यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट्स आपको देना है. जिंदगी बहुत खराब है. मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जब होना है ना, बहुत खराब हालत है. आप एस्ट्रोलॉजर दिखाओगे, अगर आप बिलीव करते हो, विल से दैट यू हैव द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस. जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देना है, भाई जिंदगी इतना खराब है, जो जिस चीज पे आप दाव लगा रहे हो वो फेल हो रहा है. wherever you put your bet it is going mandatorily to be failed. सबसे वर्स्ट केस में वो जाके चीज बनेगा, लास्ट में बनेगा. क्लियर? नाउ सी, Raj has 10 pairs of red, pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes. रेड 1 का लेफ्ट, रेड 1 का राइट, रेड 2 का लेफ्ट, रेड 2 का राइट. इस तरह रेड 10 का लेफ्ट और रेड 10 का राइट. सिमिलरली व्हाइट का कितना है? व्हाइट का टोटल 9 पेयर्स है, मतलब 18 टोटल इंडिविजुअल. अगर हम देखेंगे यूनिट्स, शूज होगा ना, यहाँ पे अगर 10 पेयर्स है, टोटल इंडिविजुअल शूज कितना आएंगे? 20. यहाँ पे 18. और फिर ब्लैक में कितना आएगा? 8 है, मतलब 16. क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज टू मेक टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर. आपको एक रेड पेयर ऑफ शूज चाहिए, आप कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लगाओगे?
आपने क्या किया इस तरह का क्वेश्चन में, पहला पिक किया, वो आ गया आपका ब्लू, ब्लू का सारे चले आए, रेड का कोई ठिकाना ही नहीं है, ब्लू का 16 यूनिट्स चले आए, एक्सक्यूज मी, ब्लू का टोटल 16 आप शूज पिक कर लिए, बट 8 पेयर्स अभी आपने पिक कर लिए, रेड का कोई ठिकाना नहीं। आपने पूरा 18 का पिक कर लिए व्हाइट, उसके बाद भी रेड का कोई ठिकाना नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 34 अटेम्प्ट्स आपने यूज कर लिए, उसके बाद में भी आपको रेड का कोई पेयर मिला ही नहीं। सो क्या 27 आंसर हो सकता है, नहीं, बट एक ऑप्शन है 36, यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं। कैसा गलती, देखो, अभी आपने सोचा कि अच्छा मेरा लाइफ तो अच्छा हो गया, चलो थोड़ा लॉस हो गया कि मैंने पिक कर लिया, सारा ब्लू आ गया, सारा व्हाइट आ गया, अभी तो रेड आएगा ही आएगा, तो आपने सोचा कि चलो रेड वन पिक कर लिया, रेड वन का राइट भी आ गया, ये तो आपका अच्छा मतलब साइन है ना कि दिस इज योर बेस्ट केस। नहीं, इसके बाद भी और हालत खराब हो सकता है। कैसा होगा, आपने सारे रेड पिक कर लिए जो कि लेफ्ट पेयर है, oh my god, then you will think, अरे I have picked all left shoes of red, I haven't got a pair, so that means आपने 10 और अटेम्प्ट्स बना दिए। जिंदगी इतना खराब हो सकता है, तभी जाके एक अटेम्प्ट जो आप बनाओगे वो आएगा राइट, वो किसी एक के साथ मैच करेगा, आपको मिलेगा एक पेयर। सो 34 10 44, एक 45, so your answer would be 45। got it? So whenever it is a question of maximum number of attempts, think that you have the worst of the worst, आपका पूरा सिचुएशन है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, जिंदगी बहुत खराब है, उसके बाद आपको पिक करना है, क्लियर, देन ओनली यू कैन रीच टू द आंसर, और एल्स यू विल एंड अप गेटिंग अ बेस्ट केस, क्लियर, गॉट इट? सो द आंसर वुड बी 45। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। This question is actually a derangement problem. Derangement we used to read in permutation combination, but I haven't taught this because this is exclusively a JEE problem. बट ये एक्चुअली डिरेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, लोग बोलते हैं कि ये डिरेजमेंट प्रॉब्लम है, बट ये लॉजिक से भी सॉल्व किया जाता है जितना आपके पास बेसिक पीएनसी का नॉलेज है। लेट अस सी द क्वेश्चन। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स, letter number 1, letter number 2, letter number 3, letter number 4, envelope number 1, envelope number 2, envelope number 3, envelope number 4, 4 letters, 4 envelope, exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address। obvious सी बात है, अगर हम मान लेते हैं कि envelope 1 belongs to, sorry, letter number 1 belongs to envelope number 1, letter number 2 belongs to envelope number 2, letter number 3 belongs to envelope number 3, letter number 4 belongs to envelope number 4, then can we say that exactly one letter is put in the exactly one envelope having the correct address? Yes or no? Yes. Now if the letters are randomly inserted, आंख बंद करके आपने insert किया into the envelopes, then consider the following statement: it is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope। आपने envelope 1 में letter 1 आना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। आपने क्या किया कि envelope 1 में सपोज L2 को इंसर्ट कर दिया, अगर L2 में आपने इंसर्ट किया, 1 इनकरेक्ट हो गया या नहीं? लेटर 2 हैज गॉन टू अ इनकरेक्ट एनवलप, बट लेटर 2 कहां पे जाना था, वो एनवलप 2 में जाना था, तो एनवलप 2 में किसी और लेटर आ जाएगा। हाँ सर, ओबियस सी बात है, एनवलप 1 किसी और का है, अगर मैं किसी किसी और के घर पे चला गया तो वहां पे जिसको रुकना था वो किसी और के घर पे जाएगा, तो वो भी तो इनकरेक्ट होगा ना। एनवलप 1 में जिसको आना था वो नहीं आया, एनवलप 1 में किसी कोई और आ गया, जिसने भी आया वो तो इनकरेक्ट पोजीशन पे आया, वो जिसका ओरिजिनल पोजीशन था वो किसी इनकरेक्ट पोजीशन पे जाएगा या नहीं? समझ लो इस बात को, एनवलप 1 में किसी इनकरेक्ट लेटर आ गया, ये इनकरेक्ट लेटर एनवलप 1 में आया, एनवलप 1 में जिसको आना था वो तो इनकरेक्ट पोजीशन पे जाएगा ना। तो क्या आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली वन लेटर कभी इनकरेक्ट में जाएगा? नहीं, इट हैज टू बी मैक्सिमम मिनिमम 2। मिनिमम 2 कैसे? एनवलप 1 में लेटर 2 आ गया, एनवलप 2 में लेटर 1 आ गया, इनकरेक्ट पेयर, बाकी दोनों में सही चला गया, क्लियर? सो ये गलत है, इट कैनॉट हैपन दैट वन इनकरेक्ट एनवलप, one envelope will have an incorrect letter, it will never happen, clear? So this is wrong। there are only 6 ways, second option देखो,
There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. 2 letters going into the correct envelope. 4 letters है, इसमें से 2 करेक्ट पोजीशन पे जाना है. 4C2, yes or no? That is 4 into 3 by 2, that is 6. Your answer is 6. Correct. If you don't know this, PNC के क्लासेस आपको चेक करना होगा. अगर आप नहीं किए हो, the corridor classes are open to you people. You can check that also. ठीक है. But these are the things you cannot hide anymore. आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्लियर? So you have to handle this topic at any cost. So or else अगर आपको पीएनसी पता नहीं है तो आप क्या करोगे? सर लेटर 1 लेटर 2 सही, लेटर 1 लेटर 3 सही, लेटर 1 लेटर 4 सही, लेटर 2 लेटर 3 सही, लेटर 2 लेटर 4 सही, लेटर 3 लेटर 4 सही. बताया ना, 2 letters going into the correct envelope. Let letter 1 and letter 2 go to the correct envelope. Let letter 1 letter 3 go to the correct envelope. इस तरह आप कितने केसेस बना पा रहे हो? 6 केसेस. So your answer would be 6. So your answer would be 2 only. Clear? Got it? Understood? I hope you have completely understood. Definitely you will understand. इतना efforts अगर हम दे रहे हैं और आप भी इतना efforts दे रहे हो, there won't be any iota of doubt in understanding the problem. ठीक है? Got it? Simple teaching से मैं समझा रहा हूं, समझ जाना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है then you need to work on your basics. Got it? एक बार नहीं हुआ है, डोंट थिंक दैट एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा. 2-3 बार देखो, 3-4 बार, 10 बार देखो, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में. 10-15 बार देखो, क्यों नहीं समझ में आओगे? एक बार कुछ समझ में नहीं आया, इट्स अ गुड साइन. वॉच इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ओवरकम द फियर. गॉट इट? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ सिमिलर टाइप ऑफ मैक्सिमम वाला केस प्रॉब्लम देखो. अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स, 20 blue balls. When you read such data, underline it or encircle it. Got it? 26 green balls. So you don't skip any data. 28 yellow balls, 38 red balls, 54 white balls. ठीक है? कोई डेटा स्किप नहीं हुआ. Let us read the first data. Given statement. The smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color. एक बार में समझ में नहीं आएगा, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा. द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन, इस तरह का सवाल में हमेशा मैक्सिमम वाला केस लिया जाता है. यहाँ पे लिखा गया है स्मॉलेस्ट नंबर एन, बट इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केस. मतलब जिंदगी बहुत खराब वाला चीज है. लाइफ इज क्वाइट अनसर्टन. योर थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर विश. बहुत ही खराब हालत बना के रखा है सब कुछ. ठीक है? उसी सोच में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बनेगा ही बनेगा, श्योर बनेगा. कैसे? देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन, ऐसे छोटा एन बताओ, सच दैट एनी एन बॉल्स ड्रन, आंख बंद करके एन बॉल्स आप पिक करोगे रैंडमली, इट मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर. तो सोचोगे कि सर स्मॉलेस्ट पूछा है तो 6 आना चाहिए. भाई इतना भी लाइफ में आपका मतलब लाइफ इज नॉट फुल ऑफ दैट रोजेस दैट यू विल गेट वट एवर यू पिक. Okay, you wish that I pick a black ball, you pick a black ball. You wish that I pick a blue ball, you pick a blue ball. Then the first 6 attempts में आपने पूरा एक फुल सेट पिक कर लिया. ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है. मैक्सिमम इन द सेंस लाइफ इज क्लियर. पूरा खराब हालत बना के रखा है सब कुछ. देन तभी हम पिक करने जाएंगे. तभी हमको एक फुल ग्रुप चाहिए. कैसे होगा देखो, इसका इजी ट्रिक बताता हूं. टोटल गिनो कितने बॉल्स है. कितने बॉल्स है? 14. 4 है, 14, 20, 26, 28, 38. एडिशन का ट्रिक देखो. 4 के साथ 6 को ऐड करो, 10 हुआ या नहीं? 10, 18, 18, 8, 26. 6 टेकन 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12. रुको, एक छूट गया. 54, 126, 54 कितना हुआ? 180. सो टोटल आपके पास 180 बॉल्स हैं. कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं. 180 से 6 टाइप्स को माइनस कर दो, 174. आपने 174 सारे बॉल्स पिक कर लिए, लेकिन आपको पेयर मिला नहीं है.
दैट मीन्स क्या है वो, देखो 1 फुल ग्रुप आपको मिला ही नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन, 14 ब्लैक बॉल से आपने पिक किया 13 मिला। सर एक ब्लैक बॉल तो नहीं मिला है अभी तक। ओके, आपने पिक किया 19 ब्लू बॉल्स मिला। सर अभी तक भी एक ब्लू बॉल नहीं आया, नहीं तो हो जाता। जैसे आप बिंगो खेलते हो ना, बिंगो में आपका क्या होता है, 4 हो गया है, एक एक बस एक नंबर वो बुला दे तो मेरा हो जाएगा बिंगो। वो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दैट मीन्स वर्स्ट केस सिनेरियो, 25 ग्रीन बॉल आपने पिक कर लिया, ग्रीन बॉल्स का पेयर नहीं बना। 27 येलो बॉल्स पिक कर लिए, 27 येलो बॉल्स पिक कर लिए, पेयर नहीं बना। 37 रेड बॉल्स पिक कर लिए, पेयर नहीं बना। 55 व्हाइट बॉल्स पिक कर लिए, पेयर अभी तक नहीं बना है। आपने सारे कलर्स के सारे पेनल्टीमेट अटेम्प्ट तक बना चुके हो, लेकिन वो लास्ट बॉल की खोज में हो। वो लास्ट बॉल किसी का भी आप पिक कर लोगे, आपका फुल पेयर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 180 टोटल बॉल से टोटल मैंने सबको माइनस कर लिया, सब में से एक एक को माइनस कर लिया, 174 हो गया। अभी किसका भी आप पिक करो, वो आपको देगा एक फुल ग्रुप। क्लियर, अभी आप इसको ऐड करो, वो 174 देगा। 174 में आप किसी को भी पिक कर लो ब्लाइंडली, कोई भी एक बॉल आ जाएगा ना, आपको फुल ग्रुप दे देगा। सो क्या 175 सही आंसर है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर, द सेकंड बिट, द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167। इसको कैसे करोगे बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या बताया है, आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एम ढूंढना है। एम बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। आपको एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर अगर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्स्ट केस देखना पड़ेगा। 54 सबसे कम वाला कौन सा है, 14। 54 आपने व्हाइट बॉल्स पिक कर लिया, क्या आपको ग्रुप मिला, 1 बॉल ऑफ ईच कलर? नहीं सर, व्हाइट सारा आ गया, लेकिन अभी तक तो 6 पेयर, आपको 6 कलर्स चाहिए, नहीं मिला। 54 के साथ 28 ऐड करो, 38 ऐड करो, 26 ऐड करो, 20 ऐड करो। वर्स्ट केसेस ना, वर्स्ट अटेम्प्ट्स आप बना रहे हो। 54 बार ट्राई किए, सारे व्हाइट आ गए। 38 बार ट्राई किए, सारे रेड आ गए। इतना करने के बाद जब आप लास्ट में एक व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल पिक करोगे जो सबसे कम है, तभी जाके आपको एक एटलीस्ट वन पेयर मिल जाएगा, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। तो क्या किया मैंने, इन सबको ऐड करो। इन सबको जब ऐड करोगे, इसका आंसर 166 आएगा। कैसे, 180 से मैंने 14 को सब्ट्रैक्ट किया, 166। उसके बाद एक ब्लैक बॉल मैंने पिक किया, वो आपको देगा टोटल सब में से एक एक कलर, तो आपका आंसर 167 आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दो केसेस है, फर्स्ट में एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बोल रहा है, सेकंड में एक ग्रुप बोल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। I hope you have understood this problem. If you haven't, watch it 2 to 3 times. Then only you can understand. Both the options are correct. So your answer would be both 1 and 2. Clear? Let us proceed to the next problem. Another very easy question, but students will leave this question in the exam hall seeing the statements. Consider the following statements in respect of 5 candidates P, Q, R, S, T. 2 statements are true and 1 statement is false. True statement क्या है, होगा ही होगा। One of P and Q was selected for the job. P और Q में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है। One of P and Q, either P और Q, तो कोई एक सिलेक्ट होगा। At least one of R and S was selected for the job. It is a false statement. कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। अगर ये सही होता तो क्या होता बताओ, कम से कम आर एंड एस में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, कम से कम आर एंड एस में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है। इधर आर सिलेक्ट हुआ है और एस सिलेक्ट हुआ है, और आर एंड एस दोनों सिलेक्ट हुए, बट ये सारे गलत है, फॉल्स बताया ना, ये सारे नहीं होंगे। गॉट इट? अभी थर्ड स्टेटमेंट देखो, ट्रू स्टेटमेंट है। अटमोस्ट टू ऑफ आर एंड एस एंड टी वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। अटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा
दो सिलेक्ट होंगे, एट मोस्ट टू। कौन से दो? आइदर नन सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड और एस सिलेक्टेड और टी सिलेक्टेड और आर एंड एस सिलेक्टेड और एस एंड टी सिलेक्टेड और आर एंड टी सिलेक्टेड। ज्यादा से ज्यादा दो, कुछ भी कर दो, दो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दो, मिनिमम है नन। मैक्सिमम है दो, मिनिमम है नन। क्वेश्चन क्या पूछा है? एटलीस्ट फोर वेर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। कैसे? यहाँ पे नन सिलेक्टेड, यहाँ पे दो सिलेक्टेड, यहाँ पे एक सिलेक्टेड। मैक्सिमम यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, तीन तो हुए। यहाँ पे आर एंड एस तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, तो मैक्सिमम एटलीस्ट फोर कैसे हो जाएंगे? ये गलत है। एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। क्या बता सकते हो एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब और नॉट? नहीं, ये तो मना कर रहा है ना। एस इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, एज सिंपल एज इट इज, सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मना कर रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। Clear? So what will be the answer? Your answer would be both are incorrect. Which of the is correct answer? Neither one and not two. Clear? So I hope you have got it. We have done 7 questions. We'll see again in the lecture number 27. Till then, have a great day. Bye bye. Take care everyone. Happy studying. Jai Hind.